want to find out the mass of 1 mole of electrons, that means 1 mole of anything, 1 mole of any substance is equal to 6.023 into 10 raised to the power 23. So here we are talking about electrons. So 1 mole electrons will be equal to 6.023 into 10 raised to power 23 electrons. That means mass of 1 mole electrons will be equal to 9.1 into 10 raised to the power minus 31 into 6.023 into 10 raised to power 23 kg. Is that clear to everyone till here? किसी को कुछ भी डाउट है? No, Now, ma'am. if you multiply these two numbers, your value will be 54.6 into 10 raised to the power minus 8 kg. That means mass of 1 mole of electrons contains 54.6 into 10 raised to the power minus 8 kgs. Or I can write it ulta also. If I'm writing ulta, how it is be? 54.6 into 10 raised to the power minus 8 kg contains 1 mole of electrons. Yes or no? I have just written this statement opposite. That means 1 kg will have how many moles of electrons? 1 divided by 54.6 into 10 raised to the power minus 8 mole of electrons. Which can be written as, इसको ऊपर ले जाओ, in the numerator you will have 10 raised to the power 8 divided by 54.6 moles of electrons. and options में इसी फॉर्म में गिवन था, तो आपको प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्म में it was given in the option. Understood everyone? Yes, ma'am. समझ में आ गया सबको? Is there anyone जिसको समझ में नहीं आया? You can ask me once again. It's an easy question. No, ma'am. Now, fine. Krish, you can use 6.022 also. It's okay, no problem in that. 6.022, 6.023 दोनों ही यूज किया जाता है. अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो वो वही यूज करो, बट अगर क्वेश्चन में 6.023 गिवन है तो फिर आपको 6.023 ही यूज करना होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो हमने यहाँ पे निकाल लिया. मुझे ये पता है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. एकदम ऊपर वाले का हाफ थिंग है. इसका मतलब है मास ऑफ 1 mole electrons will be equal to 9.1 into 10 raised to minus 31 multiplied by 6.023 into 10 raised to 23 kgs, which is equal to 54.6 into 10 raised to minus 8 kg. Is that clear to everyone? Okay, now next question was your how many moles of neutron will weigh 200 grams. एकदम similar type का question है. Okay, बस वहाँ पे हम 1 kg की बात कर रहे थे, but यहाँ पे हम 200 grams की बात कर रहे हैं. Okay, now mass of one, how many moles will weigh 200 grams, मतलब mass के respect में बात हो रही है. तो आपको मैं already बता चुकी हूँ, mass of one neutron is equal to 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kg. Okay, ये fundamental particles में हमको mass पता ही है. That means mass of 1 mole of neutron, mass of 1 mole of neutron will be equal to how much? 1.67 into 10 raised to the power minus 27 multiplied by 6.023 into 10 raised to the power 23 kg. Okay, so this is the mass for 1 mole of electrons. Now, so for this much of kg is equal to 1 mole of electrons. Okay, so मैं इसको उल्टा करके लिख रही हूँ. I am rubbing this thing, okay, which I have explained it like once again. It's the same thing. I'm clearing this.
Can I write down this statement in opposite manner? I can write down 1.67 into 10 raised power minus 27 into 6.023 into 10 raised power 23 kg will have 1 mole of neutrons. That means 1 kg will have how many neutrons? 1 divided by 1.67 into 10 raised power minus 27 into 6.023 into 10 raised to the power 23. And in the question they are asking for 200 grams. 200 grams means 0.2 kg. Okay, if I want to convert this grams into kg, then it will become 0.2 kg. You know how to convert kg into grams? Everyone knows this? Yes or no? Yes, ma'am. You know that Yes, ma'am. 1000 grams is equal to 1 kg. That means 1 gram is equal to 1 divided by 1000 kg. So for 200 grams, it will be 1 divided by 1000 into 200 kg. This will be cancelled out. 2 divided by 10 is equal to 0.2 kgs. Okay. So for 0.2 kgs, it will be equal to 1 divided by 1.67 into 10 raised to the power minus 27 into 6.023 10 raised to the power 23 multiplied by 0.2. This will be the mole of न्यूट्रॉन्स. अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. अच्छा, कैलकुलेशंस इजी करने के लिए यू कैन डू फ्यू थिंग्स. कुछ चीज़ें आप कर सकते हो. 1.67 को आप जो है लिख सकते हो 10/6 ऑल्सो. 1.67 जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आपको 1.67 के अप्रॉक्सीमेट ही आंसर आएगा. और 6.023 को आप 6 ले लो, तो अप्रॉक्सीमेशन करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ईजी हो जाएगा. तो दिस विल बी 10/6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27 इंटू इसको 6 लिख लो इंटू 10 रेज पावर 23. ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा. ऊपर आपके पास है 0.2. सो यू विल हैव, यहाँ पे माइनस 27 है, ये 23 है, तो आप इसको कट करोगे तो कितना बचेगा? 0.2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7. माइनस 7 को ऊपर लेके चले जाओ तो क्या मिलेगा? 0.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 7. ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10. इसको कैंसिल कर दो तो यू विल हैव हाउ मच? 0.2 into 10 raised to the power सॉरी ये गलत कैलकुलेशन किया मैंने, है ना? 3 4 5 6 7 4 आएगा. आई एम सो सॉरी, इधर 4 आएगा, 4 आएगा तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 0 बचेंगे मोल्स. सो आई कैन राइट डाउन एज 200 मोल्स. अंडरस्टूड? समझ में आया सबको? क्लियर है? यस प्रशस्ति, हमने केजी में करके किया है ना. इट विल बी इजी टू कैलकुलेट. सुहान ने जो कैलकुलेशन किया है समवॉट करेक्ट किया होगा, बट एग्जाम में क्या करना है कि अगर अप्रोक्सीमेशन से आंसर आ जाता है तो व्हाई नॉट, हम क्यों इतना अपना टाइम वेस्ट करें, है ना. तो वी विल ट्राई कि हम मैं कोशिश करूंगी कि आपको कैलकुलेशंस जो है वो इजी बता पाऊँ, सो दैट आपको हेल्प मिले. तो यहाँ पे हमको ऐसे ही करना है. कभी भी आगे आपको कैलकुलेशन करना हो, इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो 1.67 को यू कैन राइट इट एज दिस थिंग 10/6 एंड आपको कैलकुलेशन करना है 6.023 का, तो आप क्या कर लोगे उसको सिंपल 6 लिख लो. ओके. टेरेंस, इसमें क्या हो रहा है कि आपको पूछा है कि 200 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रॉन में कितने मोल्स होंगे. ठीक है, 200 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे. तो उसके लिए पहले मैं निकाल लेती हूँ कि एक न्यूट्रॉन का मास 1.67 kg है इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 27. तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? आपको पता है कि 1 मोल में कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स. तो 1 मोल के लिए मास कितना हो जाएगा मेरे पास? अगर 1 एप्पल का मास 10 ग्राम्स है तो मेरे पास 5 एप्पल का मास कितना हो जाएगा?
10 into 5 दैट मीन्स 50 ग्राम्स, है ना। वही तो किया है हमने। यहाँ पे एक का मुझे मास पता है केजी में, तो 1 मोल में मेरे पास कितने मास है। 1 मोल का मतलब ही क्या है यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23, तो उसका मास कितना हो जाएगा दिस मच। इसी स्टेटमेंट को मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, बस उल्टा इसलिए लिख दिया ताकि मेरे को थोड़ा सा जो भी फाइंड आउट करना है वो राइट हैंड साइड में मिल जाए। तो अगर इतने केजी का मास 1 मोल है, तो 1 केजी का मास कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई दिस मच। तो 0.2 केजी क्वेश्चन में जो गिवन है 200 ग्राम्स, उसके लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 0.2 से, उसके बाद हमने कैलकुलेशन किया है। ओके समझ में आया टेरेंस? ओके और इसी चाहिए कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 केजी को वे करेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास मल्टीप्लाई कर दो जितने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो आपके पास इतना टोटल मास आ गया। तो इतने केजी 1 मोल में प्रेजेंट है, दिस मच ऑफ केजी इज प्रेजेंट इन 1 मोल। तो 1 केजी में कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई 54.6 इंटू 10⁻⁸। इजी तो है संपदा। ओके कैलकुलेशन में क्या डाउट है पूछो, कैलकुलेशन में क्या डाउट है बताओ। मैम मैंने उसको पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया था, तो मेरा आया हाँ, कर सकते हो। 10.06141 हम्म इंटू 10⁻⁻4, हम्म और बाद में 0.2 के बाद हम उसको रेसिप्रोकल करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ मैं तभी तो बोल रही हूँ कि आपको एग्जाम में फिर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि यूज दीज ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस, अदरवाइज कैलकुलेशन करने में ही रह जाओगे। ओके दैट इज वाई आई एम हेल्पिंग यू आउट ना। अब मैं 1.67 को मल्टीप्लाई करूँ 6.023 तो कितना लेंदी कैलकुलेशन होगा। व्हाई वुड आई डू दैट इफ आई कैन मेक माई कैलकुलेशन ईजी। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लेके, हमेशा अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना होता है, बट जहां जहां पे मैं बोल रही हूँ वहां वहां पे अप्रोक्सीमेशन आप ले सकते हो। ओके ओके मैम। जो आपने किया है वो मेरे को भी डिफिकल्ट लगेगा, जैसा आप कर रहे हो अगर मैं करने बैठूंगी वो मुझे भी डिफिकल्ट लगेगा। दैट इज वाई आई हैव मेड द कैलकुलेशन ईजी। और यू ऑल्सो ट्राई टू, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, है ना। इतना अगर आप एक क्वेश्चन में अगर इतना इतना टाइम लगा दोगे तो सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा हिंट देके कि कहाँ कहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, वैसा करके आपको सॉल्व करना है। ओके मैम। ओके फाइन। So, this was about the questions which I gave you for homework. Now, let's continue with the chapter. Next topic का जो हम बात करेंगे that is your atomic mass. Okay? या फिर इसी को हम बोल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ओके ग्राम एटॉमिक मास हम कब बोलते हैं, when atomic mass is expressed in grams। जब ग्राम्स में अगर हम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर दे तो ग्राम एटॉमिक मास, अदरवाइज इट विल बी नोन एज एटॉमिक मास। ओके नाउ व्हाट इज एन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। कोई भी एटम का या कोई भी मॉलिक्यूल का अगर मैं 1 मोल ले लूं और वो 1 मोल में जितना भी उसका मास आ रहा होगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर एटॉमिक मास। ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सब्सटेंस ले रही हूँ, यहाँ पे सब्सटेंस लिख लिया और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ग्राम एटॉमिक मास। इफ आई टेक हाइड्रोजन,
तो हाइड्रोजन का वो ग्राम एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम, ओके, विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू, अगर मैं मोल्स के टर्म्स में बोलूँ तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल्स. दिस इज व्हाट इट इज सेइंग ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम. अगर मैंने हीलियम ले लिया तो हीलियम का मास होता है 4 ग्राम, विच विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल. अगर मैं ले रही हूँ लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7 ग्राम, विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1 मोल. और ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया था. Here for carbon atom it will always be equal to 1 mole. 1 mole always be equal to this number of carbon atoms, which will be equal to this gram. So this is actually your gram atomic मास. तो जो भी उसका एटॉमिक मास होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है. और जो 1 मोल है वो किसके इक्वल होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. बट हम यहाँ पे सिर्फ मास की बात कर रहे हैं. तो जितने मैं यहाँ पे लिखा रही हूँ उनके याद करने जरूरी है आपको. बेरिलियम का होता है 9 grams. That means it will be equal to 1 mole only. For boron, it is equal to 11 gram, which is equal to 1 mole only. Okay. Let's say next I am taking carbon. Carbon का कितना होता है 12 grams. For 12 grams, it will be equal to 1 mole. For nitrogen, it is 14 grams, which will be equal to 1 mole. For nitrogen, then there is oxygen, it is 16 grams, which is equal to 1 mole. These are the masses of these atoms, okay, 1 mole of these atoms in the terms of grams. Now, for fluorine, it is 19 grams, which will be equal to 1 mole. Somewhere you might find MOL or somewhere you might find MOLE. It's the same thing, है ना, confused नहीं होना है. Then neon, its mass is 20 grams, which is equal to 1 mole. After neon, let's say I have sodium. So for sodium, it is 23 grams, which is again equal to 1 mole. After sodium, I have magnesium. Magnesium, 24 grams, which is also equal to 1 mole. Then aluminium, it is 27 grams, which is also equal to 1 mole. Then you have silicon. Silicon, it is 28 grams, which is equal to 1 mole. Then you have phosphorus. Phosphorus is represented as P. It is 31 grams, which is equal to 1 mole. After phosphorus, you have sulfur. Sulfur is your 32 grams, which is also equal to 1 mole. After sulfur, you have chlorine. Chlorine is 35.5 grams, which is also equal to 1 mole. And for argon, it is 40 grams, which is also equal to 1 mole. So I have told you the mass of 1 to 20 elements, from starting from 1 to 20 elements. These are your 1 mole equal. Now, yes, mass will vary, Krish, mass will vary, but whatever this mass is for 1 mole, it will always be equal to this gram atomic mass. So it all are 1 mole. If I'm writing 1 mole, that means this is also equal to Avogadro's number, है ना? Or you can say that 6.023 into 10 raised to the power 23 atom of hydrogen. Here also 6.023 into 10 raised to the power 23 atom of helium. So that's what I have told you, that it does not matter what particle you are taking. Like for 1 dozen, आप चाहे apple ले लो, banana ले लो, eggs ले लो, pencil ले लो, rubber ले लो, it will always be equal to 12. In the same way, if I take 1 mole, of any substance, कुछ भी कोई भी atom में ले लो, it will always be equal to that number of particles only. For example, जिसको थोड़ा बहुत भी confusion हो रहा है, मान लो मेरे पास यहाँ पे बनानास है, इधर मेरे पास एप्पल्स है, यहाँ पे मेरे पास पेंसिल्स है, और यहाँ मैं एग्स ले लूँ, ठीक है. तो अगर मैं 1 डजन इन सबका सब ले लूँ, चारों का 1 डजन, तो मेरे पास 12 बनानास होंगे, 12 एप्पल्स होंगे, 12 पेंसिल्स होंगे और 12 एग्स होंगे, है ना. बट अगर मैं इसकी मास की बात करूँ
तो मास इन सबका क्या होने वाला है, डिफरेंट। क्या मास सेम रहेगा? टेल मी, विल द मास बी सेम? नो, क्योंकि मास डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा मैटर लिया हुआ है, कौन सा पार्टिकल लिया हुआ है। बनाना लिया हुआ है, एप्पल लिया हुआ है, पेंसिल लिया हुआ है, पेंसिल हल्के होंगे, उसका मास कम होगा, एक्स का अलग मास होगा। इन द सेम वे अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट एटम ले रही हूँ तो उनका मास अलग होगा, लेकिन मैं अगर उसका 1 मोल कंसिडर कर रही हूँ तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जो भी आप ले रहे हो उसके इक्वल हो जाएगा। अभी समझ में आया इसके थ्रू? अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो मैं 1 मोल का कोई भी चीज ले लूं, नंबर विल बी सेम बट मास वेरी करेगा, और यही वो मास है उसके डिफरेंट डिफरेंट, है ना। अब देखो इसमें से कौन कौन से आपको याद करने, इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, जो याद करने ही है। एक तो हाइड्रोजन का, हीलियम का, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो याद होने ही चाहिए हर हाल में। उसके बाद सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ओके, दीज आर द एटम्स जिनका मास आपको याद होना चाहिए। ओके, थोड़ा बहुत आपको अगर मैं बता दूं कि मे बी कभी भूल जाओ आप एग्जाम में, नहीं याद आ रहा है एटॉमिक मास, तो सबको एटॉमिक नंबर तो पता ही है, 10th में पढ़ा था ना। टेल मी व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, टेल मी। When number of protons present, electrons. Number of protons. Atomic number is your number of protons and mass number is your number of protons plus neutrons. तो आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, तो उसका ग्राम कितना है, 1 ग्राम, ठीक है। हीलियम के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 2, मास कितना है, 4। तो जो भी उसका एटॉमिक मास होता है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर जो है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो मास नंबर होता है 10th में पढ़ा होगा, इट इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। मतलब जितना भी प्रोटॉन्स का मास है उससे ऑलमोस्ट क्या होगा, डबल, या डबल से थोड़ा ज्यादा, बट डबल से कम का बहुत कम होता है। तो हीलियम का ऑलमोस्ट डबल है। लिथियम के पास 3 होता है, एटॉमिक नंबर 3 है। तो अगर इन केस आप भूल जाओ, ऐसा कुछ आसपास आप देख सकते हो, बट फिर भी एग्जैक्ट वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता तो दिक्कत। Atomic mass is okay. So let's move on. So यहाँ तक हमको एक चीज समझ में आ रही है कि if I am asking about mass of 1 mole of any element, mass of, okay बेटा 1 second ना,
Okay, everyone, just give me 5 minutes, okay? I'll be back in 5 minutes. तब तक what you have to do is you have to do one question. मैं आपको एक question करने को दे रही हूँ. Question करो. I have a little bit of just one thing. Till then, do this question. Calculate number of atoms and number of gram atoms in 115 gram of sodium. Okay, try to solve this. देखो solve कर पा रही हो क्या? And just give me 2 minutes.
Okay, am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay, sorry, there was a little bit of interruption. Fine. So have you tried to solve this question? Yes, ma'am. Solve हुआ? हाँ मैम 30.115 into 10 to the power 23 एटम्स आया. ठीक है, अब देखो. हो सकता है बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ हो, ठीक है, दैट इज परफेक्टली ओके. तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेल यू अ कॉन्सेप्ट जो कि आपने एक्चुअली में 9th क्लास में पढ़ा होगा. ओके, नाउ basically if I want to find out the number of moles, okay, let's say I have to find out the number of moles. Do you know this formula? It is equal to given mass divided by molar mass. Have you heard about this formula? Yes, ma'am. Given mass divided by molar mass. Okay, now in this case given mass is your 115 grams and molar mass can also be called as your gram atomic mass. Okay, so molar mass and gram atomic mass is the same thing. Both these are your same, they are not different. This one thing is clear. This is clear to everyone, yes or no? Tell me. है ना? Okay, good. Now this number of moles, or you can say that moles, it can also be called as number of gram atoms. So if in the language question may they are giving you a number of gram atoms, that means they are asking you about the number of moles. Understood? यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? कोई डाउट? यस और नो? नहीं मैम. है ना? क्लियर है ना इतना चीज? Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ तक हमको पता चल गया कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मींस दे आर आस्किंग अबाउट मोल्स एंड मोलर मास इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स, whatever is the total number of atoms, okay, so it will be equal to number of gram atoms multiplied by Avogadro's number. So these are your two formulas which you have to remember. ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज जो है वो आपको लर्न करने हैं. अभी देखो इसको मैं समझाती हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. If okay, let's say I have this big square, okay, and all this big square contains these small squares. Okay, now let's say the mass of let's say mass of one square. Okay, mass of one square is 1 grams. Mass of this one square, this is how much? 1 grams. And let's say the mass of one big square, this whole big square, it is equal to 12 grams. Okay, and the question asks you how many 1 gram of small box I can put in this whole square. So what will be your answer? How you will find out? How will you find out this? By 1. That will be total mass is 12 divided by the mass of one small square is 1. That means how many squares will be there? 12 squares. Total mass divided by the mass of one square. So this the number of square will be equal to total mass divided by mass of one square. Okay, fine. So
in the same way, in this exactly same way, what we are going to do is, suppose I have, let's say, some amount of mass given for any substance. Here it is given as 115 grams. Okay, divided by the mass of normal, whatever your 1 mole will be equal to. For sodium it is 23 grams. है ना? For sodium it is 23 grams. So this will give you number of gram atoms, and this number of gram atoms is also your moles. So that means your answer here will be, for number of gram atoms, 115 divided by 23 will be equal to 5 gram atoms, or you can say that moles. Is that clear to everyone? Is that clear to Yes, everyone? ma'am. Okay. Now, if I say 1 mole contains 6.023 into 10 raised to the power 23 atoms of sodium, because here we are talking about sodium. That means 5 moles, okay, or you can say that 5 gram atoms will have how many number of atoms? 6.023 into 10 raised to the power 23 multiplied by 5 atoms of sodium. So your answer will be, we'll multiply this into 5, somewhere around 30 point something aega, 30 point something into 10 raised to the power 23. Is that clear to everyone? And question क्या पूछ रहा था आपसे? Question was asking about calculate the number of atoms. हमने number of atoms calculate कर लिए. It is somewhere around here. And the number of gram atoms. Number of gram atoms means they're asking you to find out the moles in 115 grams of sodium atom या molecule जो भी है. Is that clear to everyone? Question समझ में आया सबको? Yes, ma'am. है ना? कोई भी है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया, सो प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट प्लीज लेट मी नो. जिन जिनको समझ में आ गया जस्ट रेज योर हैंड. मैम मैम वैसे बस इलेक्ट्रॉन के मास के लिए हम उसके मास इनटू अवोगाड्रोस नंबर करते हैं, और बाकी एलिमेंट्स के लिए हम बस एलिमेंट का मास लिखते हैं. 1 मोल ऑफ, नहीं मैंने तो Na से मल्टीप्लाई किया ना, ये रहा Na, यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई किया मैंने. नंबर ऑफ एटम्स के लिए नहीं, वो बस मास ऑफ 1 मोल ऑफ, अभी सोडियम है तो हमारा 23 ग्राम्स है, पर जब हम मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं वो हम उसके मास से अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसे, है ना? नहीं ऐसा कोई वो नहीं है, दिस इज तो सिंपल मैथ्स. मैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा रही हूँ, कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं है, यूनिटरी मेथड है. कि अब मैं अगर बोल रही हूँ कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास 9.1 इंटू 10 रेज पर माइनस 30 kg है, तो मास ऑफ 6.023 इंटू 10 रेज पर 23 का कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10 रेज पर माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 या 023. तो ये तो टोटल मास आ जाएगा ना. ऐसे ही मैं बोल रही हूँ कि 1 मोल में मेरे पास इतने एटम्स होते हैं, 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 सोडियम के एटम्स हैं यहाँ पे, तो मेरे पास 5 मोल्स में कितने हो जाएंगे? तो यहाँ मोल के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, यहाँ पे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, बट बात तो सेम ही हुई ना. तो ये 5 मोल में कितना हो जाएगा? 5 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज पावर 23 सोडियम एटम्स. 5 मोल. हाँ बोलो. अभी हम जब मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, हम वहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू अवोगाड्रोस नंबर करते हैं ना. मैम तो फिर हम जब बस एक एलिमेंट ले रहे हैं, अभी सोडियम लिया, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम हम बस 23 ग्राम्स लेते हैं डायरेक्टली, है ना? हाँ क्योंकि नहीं मैं वन, वो तो डेफिनेशन हो गई ना, वो डेफिनेशन हो गई कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का जो भी मास है, ओके, वो 1 मोल का ऑलरेडी गिवन है. बट जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वहां पे मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन का मास पता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास नहीं पता. 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए हमने अलग से फाइंड आउट किया था, वो जो मैंने आपको बताया था दैट इज फॉर ओनली 1 मोल का इतना मास है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो.
अच्छा, वो बस एक ही इलेक्ट्रॉन का हाँ, मास वो था मैंने तो। एक इलेक्ट्रॉन का मास बताया, तो 1 मोल के लिए मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इससे, और यहाँ पे ये ऑलरेडी मल्टीप्लाइड करके वैल्यू आई है। ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 31, 28, 35.5, वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके मैंने आपको उतना मास बताया कि उतना ही आ रहा है। हाँ मैम। ठीक है, हाँ मैम। ओके चलो। सो एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आई थिंक आपको इस टाइप के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सॉल्व करोगे बहुत सारे तो क्लियर हो जाएंगे वो। ओके, क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ ग्राम एटम्स? जल्दी से बताओ। मोल्स। मोल्स, ठीक है। एंड नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स तो नॉर्मल वैल्यू है, उसका कुछ चीज तो नहीं, बट यहाँ पे मोल्स की बात कर रहे हैं। इन द फॉलोइंग, ठीक है, पहला है आपके पास, इफ आई हैव 1 milligram of hydrogen. Second one, if I have 40 kg of neon. And third one, if I have 22.4 grams of iron. And fourth one is 600 kg of carbon. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मोल्स या फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नाउ देखो इधर, मेरे को निकालना है 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन में। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये पता होने चाहिए कि जब हमारे पास फॉर्मूला जो है मोल्स के लिए वो कितना है, गिवन मास, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ GAM। ओके, गिवन मास कितना है मेरे पास, 1 मिलीग्राम, यस और नो, है ना? यस मैम। मिलीग्राम्स को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम्स में। ग्राम्स में। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 1000 मिलीग्राम्स इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो 1 मिलीग्राम किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम्स, which is equal to 10 raised to the power minus 3 grams. Is this clear to everyone? यस मैम। है ना? तो इसका मतलब है कि मैं सीधा फॉर्मूला लगा दूंगी, गिवन मास कितना है मेरे पास, 10 रेज टू द पावर माइनस 3 ग्राम्स, और हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 1 ग्राम। तो आंसर कितना हो गया मेरे पास, 10 रेज टू द पावर माइनस 3। ये क्या हो गया आपके पास, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या फिर मोल्स। ठीक है, नाउ अब पूछ रहा है मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स। तो 1 मोल में मैं कोई भी चीज ले लूं, कितना नंबर ऑफ एटम होता है, 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। तो यहाँ पे कितना मेरे पास है, 10 रेज टू द पावर माइनस 3। तो 10 रेज टू द पावर माइनस 3 में कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 3। आंसर कितना होगा, 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 26। Is it clear to everyone? +20 होगा फिर माइनस, ऐड कर दोगे ना, -23 है उधर -3 है तो ऐड हो जाएगा, -23 और इधर -3 विल बी -26। मैम +23 होगा ना मैम, क्या होगा मैम +23, 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर +23। +20, अच्छा सॉरी आई एम सो सॉरी, हाँ हाँ ये 23 है तो ये हो जाएगा 20, सॉरी प्लस में 20 हो जाएगा, आई एम सो सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ओके फाइन, इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल। जिसको फर्स्ट समझ में नहीं आया सेकंड देखो, 40 kg ऑफ नियॉन पूछ रहा है और मुझे निकालना है मोल्स या फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो कितना गिवन है, 40 kg। तो 40 kg को मैं पहले किस में कन्वर्ट कर लेती हूँ, ग्राम से। तो हमको ये पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो 40 kg किसके इक्वल हो जाएगा, 40 इंटू 1000 ग्राम्स, विच विल बी इक्वल टू
4 into 10 raised to the power 4 grams. ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे निकालना है मोल्स। मोल्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, गिवन मास कितना है 4 into 10 raised to the power 4 grams डिवाइडेड बाई नियॉन का मास कितना होता है 20। क्वेश्चन ऊपर देखना, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 20 ग्राम्स। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 2 4, यहाँ पे 4 है 10 की वैल्यू में, यहाँ पे 1 है तो कैंसिल कर दोगे, तो 2 into 10 raised to the power 3 मोल्स आ गए, या फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ गए। अब 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ नियॉन के एटम्स होंगे 6.023 into 10 raised to the power 23। तो फिर 2 into 10 raised to the power 3 मोल्स के लिए कितना होगा, तो 6.023 into 10 raised to the power 23 multiplied by 2 into 10 raised to the power 3। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 3 2 6.0, 2 2 4, 6 into 10 raised to the power 26। समझ आया सबको? मैम 12.046 हो गया ना। 6 2 12, अच्छा हाँ 12, 12.046। ओके, समझ में आया? अब मैं ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है, दोनों ही खुद से करके देखना। आयरन का मास होता है, यहाँ पे उधर नहीं लिखा हुआ तो मैं आयरन का मास बता देती हूँ, मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक जीएम जो है, और आयरन होता है 56 ग्राम्स, और कार्बन का तो आपको पता ही है 12 ग्राम्स होता है। तो आपको ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है फॉर थर्ड एंड फोर्थ वन। कर लोगे? थर्ड क्वेश्चन 122 कितना आ रहा है? क्वेश्चन क्या है थर्ड का? 0.4 into Na, Na मतलब 6.023 10 पर 23, तो 0.4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास एक होमवर्क में क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस चैप्टर में काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो देयर माइट बी फ्यू पीपल जिनको बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग लग रहा होगा, हो सकता है कि कैलकुलेशंस या समझ में नहीं आ रहा होगा यूनिटरी मेथड एंड एवरीथिंग, सो प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है, मुझे बता दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, atomic weight या atomic mass is the same thing of two elements A and B is 20 and 40 respectively। होमवर्क के लिए दे रही हूँ, करना खुद से। If X gram of A contains Y atoms, then calculate number of atoms in 2x gram of B। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व, थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखना कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए, weight of 50 atoms of an element, weight of 50 atoms of an element is 3000 AMU। calculate number of atoms in 240 grams of the element। okay, so ये दोनों क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन होमवर्क। ओके, लिख लो जल्दी से ये दोनों क्वेश्चन। डन?
नहीं मैम। चल लिखो जल्दी से। Ma'am, what is that AMU? AMU is atomic mass unit. AMU नहीं पता? 9th क्लास में नहीं पढ़ा? ओके ठीक है, फिर AMU भी बताते हैं। लिख लो पहले क्वेश्चन। चलो देखो, व्हाट इज AMU? AMU is atomic mass unit। इसको शॉर्ट फॉर्म में AMU लिखते हैं। ओके, इसका डेफिनेशन क्या होता है बेसिकली? ओके, पहले डेफिनेशन लिख लो। अ मास इक्वल टू 1/12 the mass of carbon 12 atom। ओके, एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द मास इक्वल टू 1/12 the mass of carbon 12 atom। पहले इतना लिखो। ओके सो चलो अब थोड़ा बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। आपको अगर कोई भी चीज का कोई भी वैल्यू जो है, जो भी आप केजी बोलते हो और चाहे आप ग्राम्स में बात करते हो, तो हर एक का कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होता है ना? हर एक चीज का एक रेफरेंस पॉइंट होगा। मतलब अगर मैंने डिस्टेंस बोल दिया कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मेरे पास, ये 3 सेंटीमीटर है ना? तो रेफरेंस क्या लिया मैंने? क्या बोल दिया कि इतना 1 सेंटीमीटर होता है, तो ये कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। तो रेफरेंस क्या लिया मैंने? ये वाला। अब हमने 1 सेंटीमीटर को कुछ फिक्स करके रखा हुआ है। अगर मैं ये बोल दूं कि मेरा 1 सेंटीमीटर सिर्फ इतना सा है, तो मेरा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगा ना, बहुत सारे सेंटीमीटर्स आ जाएंगे इसमें। तो हम रेफरेंस क्या लेते हैं उससे फर्क पड़ता है। तो हमने एक ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने मास के लिए, हमने डिस्टेंस के लिए एक रेफरेंस फिक्स कर दिया और उसी के बेसिस पे हम बोल देते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक इतना किलोमीटर है तो इतना इतना 1 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा, है ना? एक रेफरेंस एंड फिक्स पॉइंट रखा हुआ है हमने। इसी तरीके से हमको, अगर हम एटम्स का मास निकाल रहे हैं तो उसके लिए भी हमको क्या रखना पड़ता है? रेफरेंस पॉइंट रखना पड़ता है। और वो रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है कार्बन 12। कार्बन 12 जो कार्बन है जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, उसको हम एज अ रेफरेंस पॉइंट रखा हुआ है। तो किसी भी कार्बन का 1/12 जो भी होगा मास ऑफ कार्बन 12, ओके, उसको हम बोल देते हैं AMU। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे? AMU। 1/12 the mass of carbon 12 atom will be called as your AMU। तो अगर इस क्वेश्चन में बोल दिया है 3000 AMU, इसका मतलब ये है कि कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में इसका मास 3000 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ 20 AMU, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन 12 के 1/12 मास के रेस्पेक्ट में जो भी सब्सटेंस है मेरा, उसका 20 टाइम्स मास ज्यादा है। तो जब हम ऐसे लिखते हैं ना कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम्स, ठीक है, हीलियम का 4 ग्राम्स, ठीक है, या फिर कार्बन का 12 ग्राम्स, तो ये ग्राम्स के रेस्पेक्ट में जब हम लिखते हैं तो हम इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और जब हम इसको AMU के रेस्पेक्ट में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 AMU, ये हो जाएगा 4 AMU, ये हो जाएगा 12 AMU। तो ग्राम्स में और AMU में यहाँ पे वैल्यूज में डिफरेंस नहीं होता है, बट अगर ग्राम्स के रेस्पेक्ट में मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं तो हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास। और अगर मैं उसको
AMU के रेस्पेक्ट में, दैट इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करूँ, हम उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अभी क्लियर है सबको? समझ में आया? किसने पूछा था AMU? So this is just a unit to represent the atomic mass. अगर मैं ग्राम्स के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो ग्राम्स हो गया, एटॉमिक मास यूनिट के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो एटॉमिक मास यूनिट। उसकी ये मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस ग्राम्स है तो ग्राम एटॉमिक मास, और AMU है तो एटॉमिक मास यूनिट, बस। ठीक है, तो आई होप AMU वाला चीज क्लियर हो गया होगा सबको। ओके, नाउ हम बात करते हैं मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ मॉलिक्यूल? Arrangement of atoms in fixed proportion. Arrangement of atoms in a fixed proportional. जैसे अगर मैं बोल दूं ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या है? एटम। अगर एक ऑक्सीजन ले लिया तो ये क्या है? ऑक्सीजन का एटम। लेकिन अगर मैं इनको कंबाइन करके H2O बना दूं तो अब ये एटम होगा क्या? नहीं। नाउ इट इज योर मॉलिक्यूल। ओके, नाउ इट इज नोन एज मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या होता है। सो एटम क्या है आपके पास? एटम is the smallest particle of an element. एक एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम। ओके, which may, next point here will be which may or may not have free existence. ठीक है, जिसका फ्री हो सकता है, फ्री एग्जिस्टेंस हो सकता है फ्री एग्जिस्टेंस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे एक आयरन का ब्लॉक ले लिया, यहाँ पे आयरन ब्लॉक है, ठीक है, तो आयरन जो है वो छोटे छोटे आयरन के एटम से ये पूरा ब्लॉक बना हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे आयरन, यहाँ पे आयरन, यहाँ पे आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास आयरन ही प्रेजेंट है, सारे एटम्स जो है वो आयरन के ही है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इसका सब कंबाइन करके एक आयरन का ब्लॉक बना रहे हैं। बट अगर मैं एक हीलियम गैस ले लूँ, तो यहाँ पे इसका कैसा एग्जिस्टेंस होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और यू कैन से दैट फ्री एग्जिस्टेंस। ओके, दिस इज गोइंग टू बी एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और फ्री एग्जिस्टेंस। फ्री एग्जिस्ट कर रहा है, बट यहाँ पे क्या ये फ्री हो एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं। एक एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो बाकी सब एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। सो दिस इज अबाउट योर एटम, जिस केस में हो सकता है फ्री हो और हो सकता है वो फ्री ना हो। मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, ओके, molecule is also smallest particle of which, या फिर बोलो of an element which have free existence। मतलब जो भी आपके पास मॉलिक्यूल होगा उसका फ्री एग्जिस्टेंस रहेगा, वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ना फ्री ना हो, इट विल ऑलवेज बी फ्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर के अंदर बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स रहेंगे, काफी सारे H2O आपस में ज्वाइंट है। बट अगर मैं एक H2O मॉलिक्यूल को अलग करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, आई कैन डू दैट। अब इसके अंदर आपके पास एटम्स कितने हैं? टोटल एटम्स 3 एटम्स है। एटम्स इसके अंदर 3 है, बट ये आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म कर गया? मॉलिक्यूल। और इसका एग्जिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, यू कैन से दैट molecules is always formed by combination of
एटम्स, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन कर लेंगे तो अमोनिया फॉर्म कर देगा. देन यू हैव H2SO4. ठीक है, सल्फ्यूरिक, जब 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो H2SO4 फॉर्म करता है, एटसेट्रा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मॉलिक्यूल का डेफिनेशन सबको समझ में आया? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्युलैरिटी. नाउ व्हाट इज मॉलिक्युलैरिटी? टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule of the substance. Total number of atoms present in one molecule of the substance is known as molecularity. For example, मैंने अगर ले लिया CO2, तो one molecule of CO2, ठीक है, एक CO2 का मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? I have 1 carbon and I have 2 oxygen. तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी हो गई? बताओ जल्दी से. What will be the molecularity according to definition? 3. 3. Yes, good. अगर मैं ले लूं C6H12O6, that means 1 molecule of C6H12O6, मॉलिक्युलैरिटी कितनी होगी? 24. कितना हो गया? 24. Yes, because 6 carbon, 6 plus 12 hydrogen plus 6 oxygen, total कितना हुआ? 24. Okay. Now, if I take the example of, let's say I have here C12H22O11. इसका 1 मॉलिक्यूल का मॉलिक्युलैरिटी कितना होगा? जल्दी से बताओ. 45. 45. कैसे? 12 plus 22 plus 11. ठीक है. अगर मैं ले लूं KMNO4, तो उसका मॉलिक्युलैरिटी कितना होगा? 6. 6 है ना. कैसे किया हमने? 1 पोटेशियम है, 1 मैंगनीज है और 4 ऑक्सीजन है. ओके. नाउ इफ आई टेक, लेट्स से एक बड़ा सा मैं एग्जांपल ले रही हूँ, देखो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो. आई हैव हियर K2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot 24H2. इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी होगी? ये एक आपका टाइप का सॉल्ट है, ठीक है. सॉल्ट को बोलते हैं पोटैश एलन. बताओ इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी है? काफी सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा. 96. यस, 96. गुड. कैसे? पोटेशियम कितना है मेरे पास? 2. ठीक है. ये वाला सल्फर कितना हो गया? 1. 4 कितना है? ऑक्सीजन. प्लस ये एल्यूमिनियम कितना है? 2. प्लस ये सल्फर कितना है? 3 टाइम्स है ना. SO4 होल थ्राइस, तो कितना हो गया? 3. प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन 4 ब्रैकेट के अंदर है और 3 बाहर है, तो 4 3 का कितना हो गया? 12. प्लस 24 आपके पास H2O है. ठीक है. एक H2O का इधर मॉलिक्युलैरिटी 3 है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 24 का तो 24 का निकल आएगा. तो दैट मीन्स 24 into 3. जब इसको ऐड करोगे सब तो वैल्यू कितना आएगा? 96. तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी हो गई? 96. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया? ठीक है. अब मैं होमवर्क के लिए 2 दे रही हूँ. मॉलिक्युलैरिटी आपको निकालना है, निकाल के देखना. ओके.
इस बेटा इस जो सॉल्ट है इसका कॉमन नेम है, उसको हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट. इट्स नेम इज मोहर सॉल्ट, एपोस्ट्रोफी एस, मोहर सॉल्ट. तो इन दोनों का आपको होमवर्क में बताना है मॉलिक्युलरिटी कितना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस कैलकुलेट करना है कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट विल बी योर classification of the substance on the basis of molecularity. ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी के बेसिस पे हम इनको काफी टाइप्स में कर सकते हैं. पहला हो गया मोनो एटॉमिक. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनो एटॉमिक? क्या लगता है मोनो एटॉमिक का क्या मतलब है? उसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? 1. है ना, मोनो एटॉमिक मतलब मॉलिक्युलरिटी कितनी हुई? 1. अगर मैं ले लूं डाई एटॉमिक, इसका मतलब है मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? 2. यस. अगर मैं ले लूं ट्राई एटॉमिक तो मॉलिक्युलरिटी हो गई 3. अगर मैं ले रही हूँ टेट्रा एटॉमिक तो मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? 4. ठीक है, हाँ 4. टेट्रा मतलब 4, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4. और इसके बाद होता है आपके पास पॉलीएटॉमिक. पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलीएटॉमिक? मोर देन 2 पॉलीएटॉमिक में ही आएंगे. 2 और मोर देन 2 पॉलीएटॉमिक मतलब ये सब जो है डायटॉमिक से लेके टेट्राटॉमिक तक, और उसके आगे भी पेंटा, हेक्सा, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, जितना है 100, इन्फिनिटी, सब किस में आ जाएंगे? पॉलीएटॉमिक में आ जाएंगे. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ एक एक करके, आई थिंक क्लास का टाइम हो गया है, चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का. बट हियर